Jai Hind everyone and welcome to my channel. Today I teach you economics. We will learn about the topic money. Money is a medium of exchange. As rupee is a medium of exchange in India, dollar is a medium of exchange in US. So a medium of exchange is known as money. In earlier days, there was a system called barter system in which goods were exchanged for goods. In that case, if I need rice and I have wheat, I have to look for a person who needs wheat and have rice. Only in that case, our exchange will take place if there is a coincidence of wants. There was a problem. As our needs were growing, we were feeling that we need a new system which easily or conveniently facilitate exchange. Just to facilitate the exchange, a new system was invented known as money. Initially, it was a medium of exchange only, but now money has many other uses. Like it is used as store of value, means money is an instrument of saving. Second point, measure of value. Nowadays, goods and services and their values are measured in the terms of money only. For example, if I ask what is the value of shirt that you are wearing right now, you can reply that it is of 1000 rupees, 1200 rupees, means a value is assigned in the terms of money only. And the third is it is used for the deferred payments, for the future payments, which made future transactions easy. It is only because of money that we are doing contractual payments nowadays. So initially it was used as a medium of exchange only, but now its use is broad. It is used for many purposes. So simply looking into the present scenario, I can sum up the meaning of money in one line, that money is what money does. Money is what money does. So let's discuss about the barter system. In barter system, you know that there was goods were exchanged for goods. It was also known as CC economy, mean commodity for commodity economy. There were so many drawbacks. That's why a need for money was felt. So let's discuss those drawbacks. Actually, the drawback of barter system is function, or you can say that is the origin of money, that why money was needed. So let's discuss the drawbacks of barter system one by one. First drawback is double coincidence of wants. In barter system, only in that position a transaction take place or an exchange take place if there is a coincidence of wants. What is coincidence of wants? As I told you earlier, suppose I have wheat with me and I need rice. So I have to look for a person who has rice and wheat, and he needs wheat. If that person has rice and he needs wheat, only in that case exchange will take place between him and me. So it was a basic condition. अगर दोनों के पास वो चीज़ नहीं है जो एक दूसरे को चाहिए, तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता था. मीन्स सेल और परचेज वर ऑन सेम प्लेस. एक ही जगह पे सेल थी और एक ही जगह पे परचेज था. दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग नहीं रखा जाता था. सेल अलग और परचेज अलग नहीं थी. तो मनी ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया. मनी सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज. अब मनी के आने से क्या हुआ है, अब हम ये नहीं ढूंढते कि इसके पास क्या है, हम ये नहीं देखते कि मुझे उससे क्या चाहिए और उसके बदले में उसे भी मुझसे कुछ लेना होगा. अब वो केस नहीं है. क्यों? अब परचेज का सिस्टम अलग हो गया है और सेल का सिस्टम अलग हो गया है. इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी. एंड सेकेंड ड्रॉबैक इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. इफ आई विल आस्क यू what is the value of your bike, you can reply 70,000. If you're a bullet, you will say 1,50,000. But just imagine if you are living in a barter system, how
you will answer this question? How you will reply? There are high chances that you will say a bullet is equal to 10 cows if you are a cow seller, or you can say a bullet is equal to 2 horse. Means there was not a common unit of value, there was not a common unit of parity to measure the value of a specific commodity. But now in today's world, we assign a value to each and every commodity. अगर आज आप किसी से पूछोगे कि बुलेट कितने का, तो आप बोलोगे 1,50,000 का। लेकिन अगर आप वही चीज किसी और जमाने में बार्टर वाली सिस्टम में पूछते तो रुपये तो वहां पे था नहीं, तो जो बंदा जो काम करता था वो अपने काम के हिसाब से उसकी वैल्यू बता देता था। मीन्स वहां पे कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी नहीं था। थर्ड पॉइंट इज डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर और कंट्रैक्चुअल पेमेंट्स। हायर वर्कर्स, जैसे हम आजकल हायर वर्कर्स जो है लेते हैं काम के लिए, हायर करते हैं वर्कर्स को, उनको हम पे करते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट, 10,000, 15,000, 20,000, डिपेंड अपॉन द वर्क। तो अगर बार्टर सिस्टम होता था तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, उसमें फ्यूचर पेमेंट्स कैसे होंगी? उसमें ये सिस्टम तो नहीं था ना कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो उसके बदले आप उसे 10 चेयर्स दोगे, 15 टेबल्स दोगे। दैट लुक्स ऑकवर्ड। तो पुराने ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट को करना बार्टर सिस्टम में। मनी के आने की वजह से अब हमने जो हायर्ड वर्कर्स हैं उनके लिए एक चीज़ फिक्स कर दी है, और भी बहुत से जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हैं, जो फ्यूचर पेमेंट हैं, वो पॉसिबल हुई हैं सिर्फ मनी की वजह से। बार्टर सिस्टम में कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स नहीं होती थी। एंड द नेक्स्ट इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब if you are in a barter system, then if you want to save something, you have to save in commodity only. But there are two problems. Storage cost will increase, and you can there are high chances that you may suffer capital loss. अब commodities ऐसी हैं, उनको स्टोर करने के लिए स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपका स्टोरेज का कॉस्ट भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, कमोडिटीज पेरिशेबल भी होती हैं और कुछ टाइम के बाद वो ख़राब भी हो सकती है, या उसके अलावा कोई डिजास्टर आ जाता है तब भी वो कमोडिटी ख़राब हो जाएगी, तो उस केस में भी आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं है। मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो और मनी को ट्रांसफ़र भी बहुत ईजी किया जा सकता है। अब गुड्स को ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो एरिया कवर करती हैं, और दूसरी चीज़ उनको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन मनी में ऐसा कुछ नहीं है। मनी इजीली ट्रांसफरेबल है और मनी को स्टोर करना भी बहुत आसान है। तो ये थे ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के, और यही हम अगर इन्हें थोड़ा सा चेंज कर दें, ये फंक्शन बन जाते हैं मनी के। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें, देयर आर मैनी फॉर्म्स, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी विल डिस्कस फ्यू। द वेरी फर्स्ट इज फिएट मनी। फिएट मनी मीन्स वो मनी विच इज इशूड विद द ऑर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। जितने भी कॉइन्स या फिर नोट्स इंडिया में हैं वो सारे फिएट मनी की कैटेगरी में आएंगे, जिसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के साथ इशू किया गया है। these notes and coins are backed with the power or order of government. And the second one is fiduciary money. It is a money which is accepted as medium of exchange due to trust between payer and payee. पे और पेई की जो ट्रस्ट है एक दूसरे पे, उसकी वजह से जो एक्सचेंज टेक प्लेस होता है, उसकी वजह से इसे एज अ मनी एक्सेप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेक, इसमें इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर नहीं होता। सिंपली फिड्यूशियरी मनी वर्क करती है एज अ मनी ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। उसके बाद आती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मीन्स इट रेफर्स टू अ मनी हुज कमोडिटी वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू इज सेम। अगर तो किसी मनी की कमोडिटी वैल्यू और उसकी एक्सचेंज वैल्यू सेम है तो हम उसे कहते हैं फुल बॉडीड मनी। फॉर एग्जाम्पल,
आपके पास अगर आप पुराने ज़माने की बात करो तो कॉइन्स जो होते थे वो सिल्वर के भी होते थे, वो गोल्ड के भी होते थे, ब्रॉन्ज के भी होते थे। तो उनकी जो कमोडिटी की वैल्यू होती थी, अगर हम उसे कबाड़ में भी बेचने जाएं, तांबे के सिक्के को कबाड़ में भी बेचने जाएं, उसे तोल के अगर बेचा जाए तब भी उसकी वैल्यू वही होती थी, और अगर उसे एक्सचेंज करे, कोई चीज़ खरीदे, तब भी उसकी वैल्यू वही होती थी। मीन्स दोनों टाइम पे अगर उसे एज अ कमोडिटी यूज किया जाए तब भी उसका जो हमें बदला है वही मिलेगा, और उसे अगर एज अ मनी यूज किया जाए तब भी उसका बदला हमें सेम मिलता है। उसे हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज क्रेडिट मनी, जिसकी कमोडिटी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, लेकिन उसकी ट्रांसफर वैल्यू बहुत होती है, उसकी जो एक्सचेंज करने की वैल्यू है वो बहुत होती है, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल नोट्स, आप सबकी जेब में, आप सबके घर में 2000 का नोट होता है। अगर हम उसके पेपर की बात करें, उसके पेपर को अगर हम लेने जाएं, या उसके पेपर को अगर हम किसी कबाड़िए की शॉप पे एज अ पेपर बेचने जाएं 2000 नोट को, तो उसके बदले में हमें 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसके जो उसका पेज है, उसका जो पेपर है, उसकी कमोडिटी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे बैक किया गया है गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसलिए उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। यानी जिस करेंसी की कमोडिटी वैल्यू नेग्लिजिबल हो लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू काफी ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। फॉर एग्जाम्पल notes. One may ask why people held notes and coins when its commodity value is almost negligible. So the answer is, it is because the notes and coins are legal tenders and backed by order of government. And it is unlawful if someone is not accepting that. Next is supply of money. Supply of money is a stock concept. It refers to stock of money held by people of a country. It does not include stock of money held by government or stock of money held by banking system of the country. Now, measures of money. How the money is measured, or how the money supply is measured. There are 4 approaches: M1 approach, M2 approach, M3 and M4. But M1 approach is the only one which is in your syllabus. So we will discuss M1 only. M1 is equal to C plus DD plus OD. What is C? C means currency held by people of a country in form of coins and notes. Second part is DD. DD means demand deposits by people with commercial banks. Third one is OD. OD means other deposit. It includes financial institutions deposits with RBI, for example NABARD. Second is demand deposit with RBI by foreign central bank and foreign government. And third is demand deposit of international financial institutions like WHO or IMF. It does not include deposit of government with RBI, deposits of commercial bank with RBI. तो मेजर करते हैं जो मनी सप्लाई को, उसके 4 अप्रोचेस हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ M1 अप्रोच है। M1 यानी इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पीपल, जो लोगों के पास पैसा है उस कंट्री के, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो। DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, जितना लोगों ने किसी बैंक में जमा करवा के रखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। एंड द थर्ड इज OD, अदर डिपॉजिट, मतलब जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उन्होंने जितना पैसा RBI में जमा किया है वो, प्लस जो फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स ने पैसा रखा हुआ है RBI के पास, प्लस फॉरेन की गवर्नमेंट ने रखा हुआ है पैसा RBI के पास, प्लस इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उन्होंने पैसा रखा हुआ है किसके पास,
हमारे बैंक के पास। तो वो सबको प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा अदर डिपॉजिट, और इन तीन चीजों को C प्लस DD प्लस OD को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा M1 यानी मनी सप्लाई। तो दो चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। जितना हमारी गवर्नमेंट ने पैसा जमा करवाया है RBI के पास वो इंक्लूड नहीं होता, और जितना हमारे बैंकिंग सिस्टम का पैसा RBI के पास जमा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन इज हु सप्लाइज मनी। मनी सप्लाई कौन करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। Point number 2, commercial bank, they circulate money. They don't have power to issue money, but they circulate the money. Third is government. आपको पता ही होगा कि ₹1 का जो नोट होता है, ये कॉइन्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। उसके अलावा जो भी नोट्स या कॉइन्स होते हैं वो हमें पता है RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। उसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज बैंक मनी, तो बैंक मनी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट बाय पीपल विद बैंक्स, यानी जितने भी डिमांड डिपॉजिट हैं वही हमारे बैंक मनी होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज अ टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पीपल प्लस वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI। यानी हाई पावर्ड मनी होता है जितना लोगों के पास पैसा है प्लस कमर्शियल बैंक्स का वॉल्ट कैश प्लस बाकी जो कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स हैं RBI के पास। इन तीनों चीजों के प्लस को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। और इसके दो और नेम है, फर्स्ट है मॉनेटरी बेस and the second one is base money. So this is for the day. Stay at home, stay safe. Jai Hind.